Okay, let's talk about the concept center of mass. Why do we need to define this particular concept? Because all of the Newton's laws are failed. All of the Newton's laws are failed if they don't, or if we don't apply force on a center of mass. पहले explain करते हैं कि center of mass. देखो अभिषेक, आप कुछ भी करके जुगाड़ करो. This is the last time I am allowing you. After that आपको ढूंढना पड़ेगा कोई और वे. Imagine करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है. Now this particular object के ऊपर if I decide to apply force, how will I apply? Let's say मुझे 5 न्यूटन लगाना है and magnitude भी दिया है, direction भी दिया है. So they are talking about 5 न्यूटन in east direction या फिर 5 न्यूटन along east direction. Okay, तो अभी 5 न्यूटन along east बोलने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? So I need to apply 5 न्यूटन, I need to apply it along east direction. So it can be like this, or it can be like this, or it can be like this. In fact, there are infinite amount of or infinite number of possibility कि मैं कहाँ पे force लगाऊं. And this actually confuses us and makes problem very complex. क्योंकि हमें ये पता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, हमारे पास डायरेक्शन भी है, we have everything that a vector demands. But the problem is that we don't have exact point where we should apply force. So what we do, rather than considering this complete object, we convert this particular object into point object. इसका जहां पे mass concentrated होता है, that point, my dear friend, is known as center of mass. तो सेंटर ऑफ मास कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना है, जहां पे इसका फोर्स कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है और वेयर शुड फोर्स बी अप्लाइड, जहां पे इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होता है. सो नाउ यू डोंट हैव टू वरी वेयर शुड यू अप्लाई द फोर्स बिकॉज देयर इज ओनली वन पॉइंट on which you can apply the force. Okay, my point is that if your object is of 10 kg, the point that you converted also has mass of 10 kg. Basically आपने बड़े पॉइंट को छोटे, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया. So now you don't have to worry about those infinite possibilities. You can easily apply the force. तो आपने यहाँ से क्या सीखा? For proper application of Newton's law, center of mass should be considered. ओके, तो सेंटर ऑफ मास हमें कैसे करना है, कंसीडर करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट. ओके, let's now talk about center of mass for different objects. Like let's begin with the symmetric object. Okay, so for symmetric object, what do I mean by symmetric object? So they are same Equal. on one side. हाँ, equally divide हो सकते हैं. जैसे कि अपना ह्यूमन बॉडी, यू बायोलॉजी के टर्म्स में आपको तो पता ही होगा, सिमेट्रिक वर्ड बहुत बार आया. बायलैटरल, हाँ वही बराबर है, मेरे को पता नहीं है वर्ड बराबर बोला कि नहीं, आप समझ जाओ. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ सर्कल, तो फॉर सर्कल सिंस इट इज सिमेट्रिक, लेफ्ट साइड में जितना है उतना ही राइट साइड में, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा. Center. Okay, if we consider, so this is its cm. Cm means center of mass. So what we understand from this particular thing is that for symmetric object, जितना आप लिख के ले सकते हो लिख के लो, मेरे पास में भी इसका नोट नहीं है. For symmetric objects, center of mass is exactly at center. Okay, let's take another object that is nothing but square. Okay, so if you consider square now, इसका center of mass आएगा exactly center. In other word, what we can say, जहाँ पे इसके दोनों diagonals divide करते एक दूसरे को, that is the point where you will find center of mass. So cm. Okay, if I draw a rectangle, okay, so let's now try to draw rectangle. So for rectangle, your center of mass is also at the point where you get intersection of diagonals. तो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे
सो यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा. सो इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड. सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिक पॉइंट पे आता है. बट नाउ लेट्स कंसिडर अ रैंडम ऑब्जेक्ट. ओके, अभी रैंडम ऑब्जेक्ट अच्छा रुको, रैंडम ऑब्जेक्ट कंसिडर करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के रिलेटेड सेंटर ऑफ मास के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अदर एग्जाम्स में नोटिस किए. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस कांसेप्ट. बोलो. सेंट्रॉइड रहेगा ना? हाँ, सेंट्रॉइड रहेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट ट्रायंगल. सो इफ आई क्रिएट अ ट्रायंगल नाउ, so this is for triangle, center of mass is at centroid. So first we need to create centroid, correct? To create centroid, what you do, आप ना angle bisector निकालते हो. Like for this particular angle, I create a bisector which is perpendicular to the, अभी perpendicular लग नहीं रहा है but आप समझ लो. चलो properly बना देते हैं ऐसे. देन दिस पर्टिकुलर एंगल को परपेंडिकुलर कैसे पास होगा, ऐसे. एंड दिस पर्टिकुलर एंगल को परपेंडिकुलर कैसे पास होगा, कुछ इस तरह से. एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नथिंग बट योर सेंट्रॉइड, और अपना सेंट्रॉइड जो होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है. ओके, टू डिटरमाइन सेंट्रॉइड व्हाट यू डू, आप एंगल को इक्वली डिवाइड करते हो एंड यू गेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. हो गया सेंट्रॉइड का कंसेप्ट. अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज याद रखो. इफ यू कंसिडर दिस as your entire distance h, okay, then your center of mass will be at the distance of h by 3 from the ground. मतलब अगर आप ऊपर से एपेक्स, ये पॉइंट को बोलते हैं एपेक्स, आप एपेक्स से डिस्टेंस मेजर करोगे तो एपेक्स से डिस्टेंस आता है 2h by 3, whereas बॉटम से डिस्टेंस आता है h by 3. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, समझो. तो जब भी सेंट्रॉइड ड्रॉ करते हैं ना, इट एक्चुअली डिवाइड्स द डिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ 2:1. हाँ, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, तो ये 2 और ये 1 है. दैट इज व्हाई जो हाइट बॉटम से आता है उसको h/3 बोलते हैं, 2h/3 बोलते हैं. नाउ लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल ओनली एंड विल ट्राई टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट to this thing. Bindeshwari, last warning for you. Dipesh Pal, Disha Gaud, Gauri, Kinjal, last warning for you. Sahil, last warning for you. Let's now try to understand the coordinate system. Okay, अभी coordinate system पे center of mass कैसे apply करते हैं वो समझाता हूँ आपको. समझो सेम डायग्राम ले रहा हूँ मैं, but this time there is a process of creating origin. कौन सा लास्ट स्लाइड एक्सप्लेन करूँ, ये वाला? अरे एकदम सिंपल छे रे. अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हुआ जैसे कि सर्कल, नहीं सर, इसके बीच से इसका भी लास्ट साइड, इसका भी लास्ट साइड. हाँ, मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास एक रैंडम ऑब्जेक्ट है और मैंने बोला कि इस रैंडम ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाओ अलोंग ईस्ट, करेक्ट? तो तू 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट लगा रहा है, बट देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ना, क्योंकि तू 5 न्यूटन यहाँ लगा सकता है, यहाँ लगा सकता है, या फिर यहाँ लगा सकता है. रादर, अरे तू वीडियो आज की बात क्या कर रही है गौरी, तू कभी ऑन नहीं करती वीडियो. एवरी टाइम देयर इज एक्सक्यूज. आज की बात ही मत करके आज मैं ऑन नहीं कर रही हूँ. जैसे कि अगर मुझे कोई आके बोलता है जो ऑलरेडी वीडियो ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल अदनान बोलता है एक आध दिन की सर आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मे बी देयर इज रीजन, देन आई कैन अंडरस्टैंड. बट तेरा वीडियो कभी ऑन होता ही नहीं है, तो व्हाई शुड आई अलाउ यू, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट योर रीजन? बराबर ना. जो लोग ऑन करते हैं अगर मुझे बोले ठीक है किंजल, तो आप अभी देखो अदनान, तो मींस अपन पोजीशन देख रहे हैं ना, कहाँ से अपन फोर्स लगाए. कहीं पे भी. अभी तुझे बोला 5 न्यूटन अलोंग इस, तो एग्जैक्टली कहाँ लगाने का, दैट इज कंफ्यूजन ना. सो व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट दिस एंटायर ऑब्जेक्ट इनटू पॉइंट ऑब्जेक्ट. दिस प्रोसेस इज नोन एज, मतलब लाइक कन्वर्टिंग इट टू सेंटर ऑफ मास. मतलब हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट का मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir, yes sir, समझ गया. So now there is no confusion where you should apply the force. No. बोलो. सर मतलब ये फिजिकल वर्ल्ड में भी अप्लाई होगा क्या, मतलब सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगाए तो इजीली मूव करेगा, फिर फ्रिक्शन कम लगेगा, ऐसा कुछ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है.
why we need center of mass ना, because otherwise न्यूटन के जितने भी लॉ है ना, they will basically fail. समझ रहा है? Okay. That is why we need consideration of center of mass. अभी अगर अच्छा यहाँ पे ना एक चीज हो सकती है कि सेंटर ऑफ मास सेंटर में आता है ना, तो सिंस द पोजीशन इज चेंज्ड, अगर समझ तो एक स्पीयर ले रहा है और स्पीयर के ऊपर फोर्स लगा रहा है एंड देन सेंटर ऑफ मास पे लगा रहा है, तो डेफिनेटली यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स ना, डिफरेंट काइंड ऑफ रोलिंग स्पीड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ट्रू है कि यस सर, शायद ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो होल भी हो सकता है ना सब रेक्टेंगल में भी बुक का. हाँ मतलब लाइक यू आर गेटिंग द पॉइंट ओवरऑल. अच्छा सुनो, तो ना अभी क्या करते हैं हम लोग, एक्सिस कंसिडर करते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, बराबर. अभी आपको एक प्रोसेस बताता हूं कैसे क्वेश्चन आता है ना. आपको रैंडम ऑब्जेक्ट देंगे या फिर एक सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट देंगे एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट सिस्टम ऑफ मास फॉर एंटायर सिस्टम, मतलब लाइक सेंटर ऑफ मास फॉर एंटायर सिस्टम. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास कौन है, आपके पास ट्रायंगल है, बराबर कि नहीं. तो ट्रायंगल के लिए आप ओरिजिन कहाँ डिसाइड करोगे, ये आपके हाथ में होता है. सो दैट इज द प्रिविलेज दैट दे गिव यू. यू हैव फ्रीडम टू चूज योर ओरिजिन. अभी मैंने क्या किया, मैंने इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का ओरिजिन ये पॉइंट कंसिडर किया जो मैंने अभी सर्कल किया है. अगर समझो किसी को, लेट्स से साक्षी को, शी वांट्स टू कंसिडर सेंटर ऑफ मास ओवर हियर, I don't have any issue. If somebody wants to take this point as origin, I also don't have any issue. If somebody wants to take apex, I also don't have any issue. It's up to them. आप हमेशा ऐसे वे में लेते हो कि आपको कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है. वो कैसे समझेगा, सॉल्व कर करके. ओके तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग वो अपना ट्राइंगल कंसिडर करने की कोशिश करते हैं. ओके लेट्स ट्राई टू कंसिडर दिस ट्राइंगल ओवर हियर. Okay, now you know that center of mass is at the centroid, that is at this particular location. Okay, now in order to determine, since center of mass is nothing but a point, it should be represented with coordinates, that is x coordinate and y coordinate. Okay, तो अभी अपना गोल होता है to find out xcm comma ycm. What does xcm represents? X value for center of mass and ycm represents y value for center of mass. अगर आप देखोगे तो xcm will be this distance because we usually measure distances from origin. तो ये हो गया मेरा xcm. And if you consider क्या बोलते हैं y, तो this one will be ycm. क्या यहाँ तक समझा मैंने क्या किया? आई एम मेजरिंग दिस. हाँ बोल. तो वो पूरा नहीं होगा 8 सेंटीमीटर, आपने वो छोटा सा ही मतलब उतनी ही जगह में होगा क्या? प्रॉपर सीएम के लिए पूछ रहे हैं ना. अरे सर वो पूरा 8 सेंटीमीटर नहीं होगा. अरे बट सेंटीमीटर मास का इसका लोकेशन चाहिए ना तुझे, ब्लू पॉइंट का. तुझे इसका क्यों चाहिए? व्हाई आर यू कंसीडरिंग दिस पॉइंट? अच्छा हाँ, मेरा हाँ, फोकस हाँ, किसके ऊपर है? ओके श्रेया, आई कैन नॉट सी योर फेस ऑन कैमरा. मेरे को फैन दिख रहा है. आई डोंट वांट टू सी योर फैन. हाँ बोल. सर अगर ट्रायंगल का जो है मतलब ओरिजिन, वो अगर ग्राफ के ओरिजिन पे लिया तो 0 आएगा क्या दोनों? हाँ एक्सियम 0 वाईसीएम 0 करेंगे ना, वो केस भी करते हैं ना डियर, टेंशन नहीं लेना. तो अभी ये एक्सियम हो गया, ये वाईसीएम हो गया. अभी सुनो, अभी इसको वैल्यू भी तो निकालते हैं. अगर समझो हम लोग कंसिडर करें कि ट्राइंगल का साइड जो है, दिस पर्टिकुलर साइड इज एल. ओके एंड इफ इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि इक्विलैटरल ही हो, बट समझो कि हर साइड एल है, तो आप एक्सियम का वैल्यू, डोंट यू एग्री विथ मी, इट इज l/2. अगर समझो ये साइड यहाँ से यहाँ तक l है, टोटल लेंथ l है ना साइड का, तो जो आपका एक्सियम है वो l का हाफ हो जाएगा ना. तो एक्सियम विल बी l/2. पर सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए. हाँ वो दूसरे ट्रायंगल के लिए तुझे वैल्यू पता होगा, उसको a बोलेंगे या फिर b बोलेंगे, समथिंग लाइक दैट. और मे बी दे विल प्रोवाइड यू वैल्यू दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो 3/2 होगा. कंसेप्ट क्या समझना है आपको कि ये l है. अरे चल जाने दे, इक्विलैटरल ट्रायंगल कंफ्यूजन कर रहा है. मैं क्या करता हूँ, मेरे को आपको दिखाता हूँ कुछ. इसको सेंटर ऑफ, अरे यार ग्लिच इन द जूम ना, सेंटर ऑफ मास, इसको l बोलते हैं. अभी तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं इसको l/2 करूँ तो, ओके ना? सर तो परपेंडिकुलर सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में चलते हैं, डिवाइड करता है इक्वली. बाकी दूसरा कोई ट्रायंगल लोगे इक्विलैटरल के अलावा, तो वो उसका जो परपेंडिकुलर बनाओगे आप, वो l/2 थोड़ी ना करेगा. नहीं उसके लिए आपको करेगा, वो भी करेगा.
परपेंडिकुलर बनाएंगे तो आइसोसेलेसिस में भी होता है। आइसोसेलेस में भी हाँ, होगा एक ना। आइसोसेलेस में होगा एक और। बाकी आप कोई भी ऐसा दूसरा ट्रायंगल बना सकते हो, उसमें नहीं होता है। बट मैं तेरे को ये सिखा ही नहीं रहा हूँ कि ये तेरे को रट्टा मारना है स्पेसिफिक केस। मैं एम टीचिंग यू द प्रोसेस। तो हाँ, टोटल डिस्टेंस एल को वो हाफ करना मेरी है तो एल बाय टू। उसमें हाँ, मैं यू आर बता रहा था करेक्ट। कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो लाइन बनाते हैं वो मेरिडियन जैसा रहता है, हाँ, तो करेक्ट। इसलिए L/2 होएगा। बाकी सब ट्रायंगल में नहीं है, तो बाकी सब ट्रायंगल में मेरिडियन बनाना पड़ेगा। बराबर है। सब वो केस भी देख लेते हैं ना एक बार, वाली वो लगा। करते हैं ना, हम लोग को क्या प्रॉब्लम है। I'm removing some people now. Gauri, watch video on YouTube. Meg, कैमरा कैसे ऑन हो गया तेरा अभी? Sir, I just said switched it off. 1 second, I'm keeping all the khana in the kitchen. ऋषा जल्दी कैमरा ऑन कर, योर टाइम्स अप। निकिता कैमरा ऑन कर, योर टाइम्स अप। तो एक्सीएम क्या होता है? L/2 होता है। व्हाट अबाउट YCM रे? तो वो YCM भी के लिए आपको क्या L/2। कर, कुछ भी h YCM by ओरिजिन से L/3 H/3 के L/3 नहीं, L by H/3। H/3 H सर। by टोटल 3 हाइट तो H अपना है ना। पर L उसको अरे ये कंसीडर करना है। L लिया क्या हाँ ये? वही अरे तू इसको L कैसे L by लेगी? How will you consider this as L? I am considering that अरे as हाँ length हाँ ना। हाँ sorry, हाँ sorry, got it. H/3 हाँ, तो समझा। YCM क्या हुआ? ये डिस्टेंस हुआ ना डियर। तो ये डिस्टेंस क्या है? H/3 है। H/3। So that is why your YCM will now become H/3। हो गया कोऑर्डिनेट्स। ऐसे लिखते हैं हम लोग। मतलब ओरिजिन का कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं, एक और कंसिडर करते हैं हम लोग, मतलब लाइक सेम सिस्टम कंसिडर करते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे कंसिडर करते हैं। लाइक लेट्स से साक्षी ने क्या किया है, शी इज लाइक लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल एंड उसने क्या किया कि जो सेंटर ऑफ मास है ना वो इसे लिया। सो हर एक्सिस इज लाइक दिस। ओके, तो क्या हुआ? उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसकी मर्जी, उसको सेंटर ऑफ मास इधर लेना है, शी कैन टेक इट ना। तो लेट्स से उसने कर लिया, इसको y कंसीडर किया एंड इसको x कंसीडर किया। अभी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन तो उधर ही रहा बट फॉर साक्षी इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी डिफरेंट, करेक्ट? सो फॉर साक्षी Origin दिस बदल गया विल ना बी, ओरिजिन इधर है ना। ओरिजिन किधर है? सर खाली ओरिजिन अपना, माइनस लग हाँ जाएगा क्या आगे? हाँ वही तो अभी एक्सिस बदल गया। एक्सीएम क्या हो गया? -L/2, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। बट ऑन द अदर हैंड YCM इज पॉजिटिव ना, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। सो YCM विल रिमेन Yes, H/3 बट दिस एक्सीएम विल चेंज। सो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? सो सेंटर ऑफ मास विल बी -L/2, H/3। देखो किसी को ये समझा कि नहीं? सर लेकिन आंसर अलग नहीं आया, फिर पॉजिटिव में आया। आंसर कौन बोला पॉजिटिव में चाहिए? क्या कोऑर्डिनेट्स कभी नेगेटिव नहीं होते? दे कैन ना। तो चलेगा। और किसने कुछ पूछा डाउट? Sir, I did not understand. You just have to consider Even I did origin not as, understood it. आपको कोऑर्डिनेट Yeah. सिस्टम आता है? स्कूल में सीखा था, याद है कुछ? आपको हाँ, ओरिजिन से लेके इसका डिस्टेंस मेजर करना है, सेंटर ऑफ मास का। अभी ये डिस्टेंस कितना होता है? अगर पूरा लेंथ L है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2। yes. बट वो लेफ्ट हैंड साइड में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो क्या होगा वो? Negative -L/2। L/2. हाँ, और अगर ये समझो ये आपका बॉटम लाइन है एक्स एक्सिस वाला, तो इसके ऊपर जो भी डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। हमको ऑलरेडी पता है कि सेंटर ऑफ मास बॉटम से H/3 पे आता है। तो YCM कितना हुआ? H/3 पॉजिटिव। क्या अभी समझा कि नहीं? Understood. बोल। There will always be one coordinate which will be in negative, right? कौन बोला? अभी लास्ट केस क्या किया हम लोगों ने? तेरा ध्यान नहीं था? दोनों पॉजिटिव थे। Yeah. Okay. ओके, तो अभी समझो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास लेते हैं ओरिजिन पे, मतलब ओरिजिन जो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास है ना, उधर से हम लोग पास कर देते हैं ओरिजिन,
लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। मैंने क्या बोला, ये अपने हाथ में होता है, अपने हाथ में पूरा गेम है, तेरे को जो करना है वो कर, यू कैन डू इट। ओके, बिकॉज एट द एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज व्हाट वी डिसाइड। अगर कोई आके रैंडमली एक्स को वाई बोल दे, वाई को एक्स बोल दे, तो आप उसको रॉन्ग नहीं बोल सकते। फॉर हिम ही इज राइट। ओके, तो अभी अगर देखोगे तो मेरा ओरिजिन सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही है, तो मेरा जो एक्सीएम होगा वो भी 0 होगा, और मेरा वाईसीएम होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ इज ऑन द ओरिजिन। तो इन दिस केस माय सेंटर ऑफ मास विल बी 0, 0। क्या ये अंडरस्टैंड हुआ? ये यस जीरो Yes, कैसे sir. है ये नहीं Yes. समझा। Exactly, मेरे sir. One can be मेरे को 0. मेरे को बताओ, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 और 0,0. हाँ, एंड सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? Origin पर. तो सेंटर ऑफ मास के पे। कोऑर्डिनेट Got क्या it. होंगे? हाँ हाँ समझे। आर यू गाइस ओके? बराबर ध्यान है हाँ, आपका? Yes, आई sir. डोंट थिंक सो। लाइक फोकस करो जरा। मैं व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। शिवांगी, आई एम रिमूविंग यू। सर Sir. बट इधर एक ही ट्रायंगल के डिफरेंट डिफरेंट मतलब कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आ रहे, ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या? सर ये फिर से ट्रायंगल बोलना। सेम है, सर ये ट्रायंगल सेम है, हम्म, तो सर इधर एक ही मतलब एक ही सेंटर ऑफ मास के डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्यों आ रहे? क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ ना कोऑर्डिनेट सिस्टम। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम द बिगिनिंग। इट्स इन माय हैंड कि मैं ओरिजिन कहाँ पे लूँ। जो मेरा ओरिजिन होगा, तू डायग्राम देख जरा प्रॉपर्ली डियर। ओरिजिन देख मेरा कहाँ पे है, ये वाले से दोनों में देखना, डिफरेंट दिख रहा है तेरे को कुछ? यस सर, यस सर। हाँ, दैट्स द थिंग, सर इट्स इन योर हैंड। हाँ बोलो, मैं एक बोल। मैं अगर एक ऊपर मिनट पहले लूंगा, उसको अपेक्स पे बोलने दो। लूंगा अगर मैं, ठीक है मैं हाँ हाँ, बोलना पड़ी। अदनान बोल, मैं तेरा ही सुन रहा हूँ। सर अगर ये ऊपर साइड होगा, अपेक्स पे होगा, तो y भी h/3 होगा, और x जो होगा वो माइनस में ही होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, X उस एपेक्स केस पे में करते 0 हैं हो तुम लोग। जाएगा ना. 0 तुम होगा लोग ना वैसे. प्रॉपरली कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। थोड़ा दिमाग शांत रखो और सोचो ना डियर। ये देखो, आप अगर आप ट्रायंगल लोगे और उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम एपेक्स पे लोगे, ओके, मतलब लाइक ऐसे, बराबर, ये ओरिजिन हो गया। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? यहाँ पे है, बराबर। अभी ध्यान से सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, एपेक्स वाला कंसिडर करते हैं। अभी अगर अभी मुझे बताओ कि एक्स एक्सिस अगर देखोगे तो ये ऐसा हुआ ना, तो इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है ना? 0 हाँ, क्योंकि वो राइट 0. थोड़ी है ओरिजिन के लिए, ओरिजिन के जस्ट नीचे है, तो इसका जो एक्सीएम है वो 0 है। बट व्हाट अबाउट वाईसीएम? वाईसीएम विल बी -2h/3. -2h/3। it will be 2h, 2h h/3 नीचे से होता है, ऊपर से 2h/3, so your YCM will be -2h/3. so now your center of mass का coordinate will be 0, -2h/3. now is it understood? Yeah. यस Yes, सर, 2h/3 yes, इसलिए लिए क्योंकि ऊपर भी y एक्सिस है ना? मतलब नहीं, क्या मतलब निगेटिव ऊपर किस लिए लिया? नेगेटिव इसके लिए क्योंकि ऊपर भी है, मतलब ऊपर स्ट्रेट नहीं, ऊपर आप ऊपर कैसे से पॉजिटिव है, एक्सटेंड करो? नीचे नेगेटिव। आपका एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, जो भी नीचे होता है वो नेगेटिव होता है। बस इतना सिंपल लॉजिक याद रखो। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, जिधर हॉरिजॉन्टल लाइन बना उसके नीचे स्टोरी खत्म। क्या क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? बेटा मुझे हाँ एक्सेस बोल। समझ में नहीं आ रहा. सर कौन सा मुझे एक्सेस? वो y सेंटीमीटर का ना L/2 नहीं आएगा। अरे मेरे डियर, एल मतलब ये लेंथ होता है, ये ये एच है, एच, हाइट ऑफ द हम ट्राइंगल, तो इट्स नॉट अरे लेंथ। हाँ तू बोल, अभी क्या बोल रही है? क्या कोऑर्डिनेट नहीं समझ रहा है तुझे? y सेंटीमीटर वाला। अरे वो समझ गया ना, बट अभी तुझे टोटल ये एच है, तो ऊपर से नीचे कितना होता है? ये 2h/3, और नीचे से h/3 होता है ना, हाँ याद आया? हाँ। अरे वो दूसरा कोई पूछ रहा था ना मुझे, दूसरे गर्ल्स में कुछ बोल रही थी कौन कोई तो। आदित्य कैमरा ऑन कर, समोसा खा के हो गया तेरा। I was asked.
हाँ बोलो, एक Sir, टाइम पे एक। Can हाँ can the origin be outside the grid? Outside, किधर not तुझे from the. तुझे जिधर चाहिए उधर, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, वेर एवर यू वांट इट यू कैन टेक इट, बट विच विल यू चूज, which will be The very easy easy for wala, you to, easy हाँ easy calculation one, wala. हाँ so for me which do you think is easy? अच्छा आप बोलोगे सर मिडल वाला Zero, क्योंकि zero. जीरो वाला Middle हाँ wala, zero. but the best one is actually this one. If you ask me, you will understand First once, वाला। once we solve few numericals. Okay, जो क्योंकि वो पॉजिटिव आंसर देता है ना, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होता। अरे you will understand, I'm telling you ना, trust me, you will understand, आपको मजा आएगा ये टॉपिक में। एक्सक्यूज एक मी मिनट सर, बोलो। सर आपने ये अपेक्स पे ओ की ये एक्स की वैल्यू 0 ली क्योंकि वो ओरिजिन के ऊपर है, इसीलिए मतलब हाँ एग्जैक्ट मतलब अगर आगे सुन सुन सेंटर ऑफ सुन मास के अभी आगे अभी सुन, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता ना, कैन यू सी द न्यू रेड डॉट, तो Yes, उसका sir. कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू होता। आर यू गेटिंग इट? बट सिंस इट इज जस्ट बिलो द ओरिजिन, इट हैज जीरो वैल्यू ना। ओके ओके, एनीवन एल्स? सर जितने बार आप मतलब ओरिजिन बदलोगे उतने बार एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी बदलेगी ना? डेफिनेटली बदलना ही पड़ेगा ना, बिकॉज योर कोऑर्डिनेट सर सिस्टम यही इज चेंज। यही चीज मतलब वो मतलब ट्रायंगल तो सेम है ना, तो कोऑर्डिनेट भी मतलब ऐसा होना चाहिए, यही चीज मतलब मेरे को भी नहीं समझ रहा है। ट्रायंगल क्योंकि मतलब आपने मतलब कोई भी बोले कि तीनों ट्रायंगल सेम था। अरे ना डियर, तू गलत समझ रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने ऊपर होता है, तू जहां से ओरिजिन लेगा वहां से तू डिस्टेंस मेजर करेगा। अरे एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये एक आपने फेसबुक पे जोक वगैरह भी सुना होगा कभी तो कभी, या फिर फालतूगिरी पोस्ट करते रहते वो। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे 6 लगेगा, तू यहाँ से देखेगा तो 9 लगेगा ना। तो दोनों अपने जगह पे राइट है, बिकॉज वी आर सीइंग थिंग्स डिफरेंटली। क्या ये ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट सेम है ना। नहीं सेम है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ 6, तू बोल रहा है 9, अपने में झगड़ा हो जाएगा फिर। पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। इफ यू चेंज कोऑर्डिनेट सिस्टम, योर पर्सपेक्टिव चेंजेस। आर यू गेटिंग इट नाउ? मतलब सर कोऑर्डिनेट मेरे ऊपर है कि मैं मतलब वैसा लूंगा। अभी मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट आपके ऊपर होता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, यू कैन टेक इट वेर एवर यू वांट। आपको उधर नॉर्थ कोरिया में जाके लेना है, उधर भी ले लो, कोई इशू नहीं है। फिर उधर से नॉर्थ कोरिया से आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। श्रद्धा कैमरा ऑन कर, रिया कैमरा ऑन सर कर। एक लास्ट क्वेश्चन, कि ट्राइंगल के ऊपर ही ओरिजिन ले सकते हैं, ट्राइंगल के बाहर भी? बाहर भी, वही तो मैक ने बोला। अभी देख तू फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर किया, तो अभी यहाँ से आप सेंटर ऑफ मास कहाँ पे कंसिडर करोगे? यहाँ पे समझो। तो आपको क्या नहीं, करना हाँ, है, बाहर कर ओरिजिन दो। से, हाँ हाँ तो बाहर ही लिया मैंने। तो सेंटर ऑफ मास क्या करोगे, तो इधर से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। अभी वो कैसे करेगा, उसके लिए तेरे पास वेज होने चाहिए, कोऑर्डिनेट मतलब लाइक एक्सिस के नाम नंबर्स होने चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट ना। दैट इज व्हाई वी डोंट यूजुअली टेक इट आउटसाइड, बट इट्स टोटली ओके टू टेक इट आउटसाइड। उससे क्या फर्क पड़ता है? ओरिजिन कैन एनीवेयर you want it to be, can be anywhere, किधर भी, आपकी मर्जी, आपको जिधर जाना है लगा ले। एंड सर एक बार इसका एक्स और वाई एक्सिस निकाल दो ना इसका। क्यों निकालू? बट अभी निकाल तो दिया एक्सीएम। अभी मेरे को डिस्टेंस किधर पता है, बट समझ ये 4 आ रहा है, तो इसका एक्सीएम हो जाएगा 4, और समझ वाईसीएम 3 है, तो वाईसीएम हो जाएगा 3, हो गया। अच्छा नहीं तो समझा? इसमें वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, L/2 वगैरह वाला? कैसे लगेगा तेरे को? मतलब L/2 कैसे? ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए ना, यू वांट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन जिधर है उधर से डिस्टेंस काउंट कर। अच्छा ठीक है, ये किसी ने मेरे को बोला था कि आई वांट टू सी ऑल द स्क्रीन्स टुगेदर बिफोर दिस सेशन एंड्स, प्लीज डू सी इट। हाँ सर। सर एक मैं नेक्स्ट स्क्रीन बताओ ना इसके वाली। I'm gonna remove you, huh? I'm serious, huh? I'm not kidding. Riya, I already warned you in the last lecture, correct? Morning wala. If you don't, next wala kya? Riya, I already warned you na in the last lecture, morning wala. Ki if you don't turn on the camera now, I'm gonna throw you out. I'm not gonna allow you. This one. पहले ना ये समझो, ये अभी पक्का समझा, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर एसएस ले लो।
लास्ट में लिखता हूँ, नहीं ये नहीं, यही लास्ट है अपना पेज। सेंटर ऑफ मास कैन बी एनीवेयर you want it, sorry सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेट लेंगे ना सर। हाँ origin can be anywhere you want it to be, जेल वाला मूवी, I don't know what are you asking. Origin can be anywhere you want it to be and coordinates of center of mass depends upon Shawshank Redemption. You can find it on Telegram. Origin can be anywhere you want it to be and coordinate of center of mass depends upon that origin. Location. That location of origin. ओके तो यहाँ तक आई गेस आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया। प्लीज राइट इट डाउन, या आई टेल यू इन न्यू सेशन। ओके अच्छी तरह से समझा सेंटर ऑफ मास कैसे Sir? करते हैं? हाँ बोल। सर मतलब ओरिजिन चेंज होगा तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज होता है? ओरिजिन चेंज हुआ नहीं, सेंटर ऑफ मास वही का वही है। सारे डायग्राम एक बार जरा प्रॉपर्ली देखा। हाँ क्या लिखा आपने वो मैंने? स्टेटमेंट लिखा है ना कि डिपेंड अपॉन, तो डिपेंड करता है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई हैव नॉट सेड सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, मैंने बोला तो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स चेंज ऑफ। होगा। कोऑर्डिनेट तो वही लिखा है ना कि कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ऑफ ओरिजिन के मतलब ओरिजिन के लोकेशन के ऊपर डिपेंड होता है। अभी भी नहीं समझा? सेंटर ऑफ मास वही है, उसका वैल्यू तो कोऑर्डिनेट सेम ही चेंज आएगी होगा। ना। मतलब वो सेंट्रॉइड पे ही सेंटर ऑफ मास आएगा। सेंट्रॉइड पे ही सेंटर ऑफ मास आएगा, उसके वैल्यूज चेंज हो रहे। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या? इधर 0 - 2h/3 चेंज हुआ, इधर इसके हाँ। पहले क्या था? -L/2 h/3 चेंज हुआ, इधर 0 0। तो क्या कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं? हाँ दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। पक्का समझा? हाँ सर सर, मेरे को सेंटर ऑफ समझ गया, मास but की ना- वैल्यू अलग आएगी। यस बिकॉज कोऑर्डिनेट्स अलग है, बट उसका लोकेशन सेंट्रॉइड पे ही है ट्राइंगल के। यस सर, यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि सेंट्रॉइड मतलब जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वैल्यू है, जैसे आपको बाहर लेके देखने बोला था, तो जब बाहर गया अपन ने तो जो एल वाली वैल्यू रहेगी उसकी, तो वो जो हाँ। सेंटर ऑफ मास से रहेगी वो अलग होगी क्या? जैसे अब L/2 होती है L/2 कैसे तो- होगी डियर? तेरे को पद तो निकालनी मैं वही पड़ेगी पूछ ना। रहा आपको। तो कब से मैं वही बता रहा हूँ कि यू कैन नॉट टेक इट एज L/2 बिकॉज तेरा ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक L/2 थोड़ी होने वाला है। तुझे वो डिस्टेंस कुछ भी करके मालूम करना पड़ेगा थ्रू अदर मेथड, और इट मे बी प्रोवाइडेड टू यू। इट कांट बी L/2, इट कैन बी L/2 इफ योर ओरिजिन इज लाइक दिस। अभी क्लियर हुआ? यस सर, मैं वही पूछ एंड रहा दैट इज हाँ, तो वही तो मैं 2 बार बताया। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप